शायद 11.2 में भी तो क्वेश्चंस दिए थे मैंने। कोई डाउट है किसी में? थे वो 0.2 के थे और एक्चुअली बाय मिस्टेक 11.1 की बात ही नहीं हुई थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया था, दैट वाज द formation of equation of a line in the 3D system. Okay, I told you that in two situations we can find the equation of line. Those situations were the first one was that if we have given the point on the line and the direction ratios of the line, and the second situation was point on the line and the direction ratios of the line, and the second situation was when we have given 2 points on the line. So I told you we have given 2 points on the line. So I told you also that in each situation we can find the equation in two forms. The first one is Cartesian form and the second one is vector form. And we have practiced some questions on those also. And I told you that also that each question which can be solved by the second situation can be solved by the first situation as well. Okay. Now today firstly we will discuss that how to convert a vector form equation into the Cartesian form and Cartesian into vector form. Let's understand this. This is an important question. So I'm writing here, convert following equation in vector form. So let's take the example first, question first. X minus 5 upon minus 2 equal to y minus 3 upon 7 equal to z plus 1 upon z minus 5 upon minus 3. Okay, this is the first question. So the form of the equation given is what? Cartesian form, and we have to convert into the vector form. So we must know how to gain the knowledge from the equation of the line. Okay, so first of all we should find the point on the line from this equation and the direction ratios of the equation. Can we find this directly? So if we look at this equation, we can easily say that point existing on line will be equal to what? बताओ। लाइन की इक्वेशन में हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कहां रखते हैं? हम रखते हैं न्यूमेटर में एक्स वाई जेड के साथ विद द माइनस साइन। तो यहां पर अपन इजीली पता लगा सकते हैं कि वो पॉइंट जो लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो यहां से मिलेगा, न्यूमेटर से मिलेगा। अब x माइनस 5 लिखा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5। ठीक है, अगर आपको यहां कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. So if we compare the things with the given equation, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, y1 की वैल्यू that is 3, z1 equal to 5, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -3। अब मैं अगर आपसे पूछूं that point on line क्या बताया जा सकता है? The point on the line is treated as x1, y1, z1. So it is what? 5, 3, 5. And what are the direction ratios? This is -2, 7, -3. Okay? तो इस तरह से हमने कंपैरिजन करके लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट को भी बता दिया और डायरेक्शन रेशियोज भी बता दिए। अब हम, क्योंकि हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन बनाने के लिए वो चाहेंगे। तो वी नो कि वेक्टर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ए वेक्टर। हमारे फॉर्मूला को अगर ध्यान दें, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला जो है दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर क्या काम करता है? ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बाय विच लाइन इज पासिंग थ्रू, या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो लाइन पर एग्जिस्ट करता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? दैट विल बी
5i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, एंड बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। सो मैंने आपको बताया था, इफ वी हैव द डायरेक्शन रेशियोज देन बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू द वेक्टर फॉर्म वी कैन फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर एज वेल। तो यहां से बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट विल बी -2i प्लस 7j minus 3k. So now we have a vector and we have b vector. So equation of line will be what? R vector equal to 5i plus 3j plus 5k plus lambda minus 2i plus 7j minus 3k, where lambda is a scalar. So whenever there's need to find the information from the given equation of line, or there's a need to convert the form of the equation of line, first of all we should write the equation in the standard form. तो फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही था, हमें कोई चेंजेस करने नहीं पड़े, और क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था तो इजीली कंपैरिजन करके अपन ने इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया। अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल लेके चलता हूं जहां हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी पड़ेगा, जैसे कि x plus 1/3 equal to 2y minus 3/5 is equals to 7z plus 1/-7. This is the another equation of line and हमें इसे भी किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन इज व्हाट? x minus x1/a is equals to y minus y1/b is equals to z minus z1/c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा साइन किसका आता है? माइनस का। अगर हमारी इक्वेशन में माइनस का साइन नहीं है तो हमें वहां पर माइनस शो करना पड़ेगा बाय एनी हाउ, है ना? वो हम देखेंगे अभी। और ये भी ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है ना, वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? 1 है। तो अगर वो 1 नहीं है गिवन इक्वेशन में तो उसे 1 भी बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके हम अपनी इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, तो हम लिख रहे हैं लेट राइट गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सी हियर, जैसा कि मैंने कहा मुझे यहां साइन माइनस का चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगा x माइनस -1 होल अपॉन 3। तो इस वाले पार्ट के लिए दोनों बातें यहां पर कंप्लीट हो गई है। x का कोफिशिएंट 1 चाहिए था, 1 मिल गया, बीच में माइनस चाहिए था, माइनस मिल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेकंड वाले में देखो, यहां पर माइनस चाहिए, माइनस है ऑलरेडी, ठीक है, माइनस है, बट यहां पर y के कोफिशिएंट कितना चाहिए? 1, जबकि कितना है? 2। तो अगर कोफिशिएंट 1 बनाना है तो हमें यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और 2 कॉमन ले लिया तो बनेगा y माइनस 3/2 होल डिवाइड बाय 5। अब क्योंकि हमें y का कोफिशिएंट 1 बनाना है और उसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये 2 जो है यहाँ से हटेगा, यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो ये हट के कहाँ जाएगा? ये हट के जाएगा 5 के डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमने अपने इस टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर लिया, है ना? दोनों बातें कंफर्म कर ली, बीच में माइनस का साइन और y का कोफिशिएंट कितना चाहिए था? 1 चाहिए था, वो मिल गया। नेक्स्ट, यहां पर ना तो बीच में साइन माइनस का है, ना ही z का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों बातों पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन 7 कॉमन ले लें z का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो z आ गया, और बीच में क्योंकि हमें क्या चाहिए? माइनस, तो माइनस लिख दिया, और फिर -1/7 एंड होल डिवाइड बाय व्हाट? -7। अब ये -7 तो यहाँ रह नहीं सकता, तो ये यहाँ से हटेगा और -7 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सही से लिखें तो लिख पाएंगे x माइनस -1/3 इक्वल टू y माइनस 3/2/5/2 इक्वल टू z माइनस -1/7/-1। नाउ दिस is the standard form of the given equation। अभी तक हमने कन्वर्जन नहीं किया है, अभी तक हमने केवल अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। और ये करने का रीजन क्या था? क्योंकि मैं इस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन निकालने वाला था। 2 इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, एक चाहिए
वो पॉइंट जो लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है और डायरेक्शन रेशियोज, ताकि उन्हें बाद में मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑन द लाइन हम कह पाएंगे -1, 3/2, -1/7। और डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 3, 5/2, -1। तो इन्हें गेन करने के बाद अब हम बनाएंगे ए वेक्टर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि ए वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बाय विच लाइन इज पासिंग थ्रू। तो यहां से वो ए वेक्टर बनेगा -ik प्लस 3/2 j -1/7 k, है ना। वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन रेशियोज भी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी वेक्टर इज व्हाट? बी वेक्टर इज द डायरेक्शन वेक्टर, जो कि कैसे बनता है? डायरेक्शन रेशियोज को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके। तो बनेगा 3ik प्लस 5/2 j माइनस k। जैसे ही हमें ये दो मिल जाते हैं हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? आर वेक्टर इक्वल टू -ik प्लस 3/2 j -1/7 k प्लस लेमडा 3ik प्लस 5/2 j माइनस k, वेयर लेमडा इज ए स्केलर। तो इन दो क्वेश्चंस से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हमें किसी लाइन की फॉर्म को कन्वर्ट करना हो, मतलब कार्टेशियन से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन, या फिर हमें लाइन की इक्वेशन से इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जैसे कि लाइन पर कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये जब जानकारी हमें निकालनी हो तो हमें पहले लाइन की इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने बिना चेंज किए इंफॉर्मेशन निकाली तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। इज इट क्लियर? इसलिए ये कन्वर्जन हमें करना आना चाहिए। और आपके सामने दो क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। यू शुड राइट दिस। अभी हमने सीखा है दैट हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म। इसके बाद अपन सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। इज इट डन?
ओके, नेक्स्ट। Okay, now let's move on to the next question. Convert following into Cartesian form. So the first question is r vector equal to minus 2ik plus 2jk minus 3kk plus lambda 5ik minus 2jk plus kk. So this is the vector form and we have to convert it into the Cartesian form. तो वेक्टर फॉर्म से अपन पहले इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उन इंफॉर्मेशन को कार्टेशियन फॉर्म के लिए तैयार करेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। और वेक्टर फॉर्म से एक इंफॉर्मेशन निकालने से पहले ये क्रॉस चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वेक्टर फॉर्म का वो क्या है, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। देखो जरूरी नहीं कि लैम्डा ही आएगा, इट मे बी म्यू, इट मे बी एनी अदर कांस्टेंट, लेकिन हाँ जहां मैं लैम्डा लिख रहा हूं जो कि एक स्केलर के लिए पोजीशन है, तो स्केलर की पोजीशन पर अगर स्केलर आता है चाहे वो कोई दूसरा हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है। नाउ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करके हमें ए वेक्टर क्या मिलता है, ए वेक्टर मिलता है इट इज इक्वल टू माइनस 2ik प्लस 2jk माइनस 3kk, और बी वेक्टर में मिलता है दैट इज 5ik माइनस 2jk प्लस kk। यहां से अगर हम समझें तो ए वेक्टर है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बाय विच लाइन इज पासिंग थ्रू। तो पॉइंट ऑन लाइन हम क्या बता सकते हैं, इट विल बी -2 to -3। डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज को बताते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 5 - 2 1। तो सिंस वी हैव पॉइंट ऑन द लाइन वी हैव डायरेक्शन रेशियोज, वी कैन इजीली फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, दैट विल बी x - -2/5
is equals to y minus 2 upon minus 2 is equals to z minus minus 3 upon 1. So finally we will gain what? X plus 2 upon 5 equal to y minus 2 upon minus 2 equal to z plus 3 upon 1. This is the Cartesian form. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. The second question is r vector equal to minus 2 lambda plus 3 I cap plus 5 minus 3 lambda j cap plus 7 lambda k cap. This is the vector form of the equation of line and we need to convert it into the Cartesian form. So right now this is not in the standard form because standard form is what? R vector equal to a vector plus lambda b vector. This is the standard form. तो अभी ये standard form में दिख नहीं रहा है, standard form में convert करना पड़ेगा. So for that we should write it as I cap को दोनों से multiply कर दें, minus 2 lambda I cap plus 3 I cap plus 5 j cap minus 3 lambda j cap plus 7 lambda k cap. Now अब आप नोटिस करो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लैम्बडा वाला टर्म जो होता है वो बाद में होता है और विदाउट लैम्बडा वाला टर्म पहले होता है. तो यहाँ जितने भी विदाउट लैम्बडा वाले टर्म है पहले उनको ले लेंगे इन द सीक्वेंस आई केप जे केप के केप और आफ्टर दैट हम लैम्बडा वाले टर्म लेंगे इन द सीक्वेंस आई केप जे केप के केप. तो व्हाट कैन आई राइट हियर? 3 आई केप प्लस 5 जे केप. देयर आर ओनली 2 टर्म्स विदाउट लैम्बडा जो मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया इन सीक्वेंस. आफ्टर दैट लैम्बडा वाले टर्म इन सीक्वेंस कलेक्ट करते हैं, माइनस 2 लैम्बडा आई केप माइनस 3 लैम्बडा जे केप प्लस 7 लैम्बडा के केप. नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बी वेक्टर जो है वो लैम्बडा से स्केलर मल्टीप्लाई होता हुआ यानी कि लैम्बडा से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाया गया है. तो इसका मतलब हमें लैम्बडा कॉमन लेना पड़ेगा, लैम्बडा कॉमन लेना पड़ेगा और विदाउट लैम्बडा वाला जो वेक्टर है उसे अलग रखना पड़ेगा. तो ये मैंने अलग रख दिया. बीच में साइन किसका बेटा? प्लस का. हम चाहें तो यहाँ पर माइनस लैम्बडा कॉमन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फिर भी हम कौन सा साइन के साथ कॉमन लेंगे? प्लस के साथ, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस लिखा हुआ है. तो अपन ने प्लस लैम्बडा ले लिया तो क्या बनेगा? माइनस 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 7 के केप. इस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. तो यहां से ए वेक्टर अपने पास बना 3 आई केप प्लस 5 जे केप और बी वेक्टर बन गया माइनस 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 7 के केप. तो पॉइंट ऑन लाइन हम लिख पाएंगे दैट इज इक्वल टू 350 और डायरेक्शन रेशियोज हम लिख पाएंगे -2 -3 7. नाउ द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म बनेगी x माइनस 3 अपॉन -2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 7. और फाइनली हम इस z माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं. अगर यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई गलत बात नहीं. तो वही रूल कि जब भी किसी इक्वेशन को हमें किसी अनदर फॉर्म में चेंज करना है तो हमें सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा.
समझ में आया? यहाँ हमने दोनों कन्वर्जन सीख लिए हैं, वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर। ठीक है, चलिए इसे समझने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और यहां पर एक छोटा सा डाउट भी हमें यहां क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि इक्वेशन किस फॉर्म में फाइंड करनी है, समझो मेरी बात, ये क्लियर ना हो कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में फाइंड करनी है, तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में फाइंड करेंगे, ये हमें क्लियर करना है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर लेनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। और अगर उसने जिस फॉर्म को पूछा है तो फिर तो आपके पास चॉइस है ही नहीं, जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी चॉइस से जो भी करना चाहो कर सकते हो, उसे इक्वेशन से मतलब है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म, है ना। सी है, जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस टू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3ik + 2jk - 2kk। तो बेसिकली अगर लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो मतलब ये वेक्टर ही किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और पॉइंट जो है वो हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है। तो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो ये चॉइस आपकी है कि आप किस फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हो, है ना। बस आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि आपने किस तरह से चीजों को कन्वर्ट किया। या तो आप पॉइंट को किस में कन्वर्ट करोगे, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करोगे और वेक्टर फॉर्म निकालोगे, या डायरेक्शन वेक्टर को डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करोगे और कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे। तो आपको कन्वर्जन करने के लिए जो भी ठीक लगता है वो आपको करना पड़ेगा। और जहां तक आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट। तो इसने दोनों ही फॉर्म पूछ ली है, अब दोनों ही फॉर्म पूछ ली तो दोनों के आंसर देने पड़ेंगे, ये भी आप जानते हो। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन के लिए बात कर रहा था। ओके, आई थिंक हमें इसे एक्सरसाइज से लेना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज में जैसे कि सी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस टू द पॉइंट -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो हमें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर एग्जिस्ट करने वाला एक पॉइंट गिवन है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली फॉर्म में गिवन नहीं है। ये कहा गया है कि रिक्वायर्ड लाइन किसी अनदर लाइन के पैरेलल है, और जिस अनदर लाइन के पैरेलल है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली नहीं बताएंगे, उस लाइन की इक्वेशन बताई गई है। तो ये जो अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि हाउ टू कन्वर्ट द फॉर्म्स, इसमें एक मिडल स्टेप थी हाउ टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म गिवन तो वहां से डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे, तो यू नो कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और अगर इक्वल हैं तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे देंगे, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ मिलेंगे, हमें डिनोमिनेटर में मिलेंगे। ये सब चीजें जो अभी हमने सीखी है वो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस।
अगर हमें दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा? यहां पर भी मैं आपको दोनों फॉर्म के केस में फॉर्मूला दे देता हूं ताकि आप जिसे ठीक समझे उसे अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकें। कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमारे पास दो लाइन है जिसमें ये लाइन L1 जो है वो इक्वेशन बनाती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और L2 लाइन जो है उसकी इक्वेशन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। आप बता सकते हो L1 के डायरेक्शन इश्यूज क्या है? A1 B1 C1। L2 के डायरेक्शन इश्यूज क्या है? A2 B2 C2। तो जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, है ना, दैट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 square. This is the formula to find the angle between two lines, है ना, और वो भी किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में समझे तो वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं कि L1 लाइन की इक्वेशन क्या है? इट इज R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और L2 लाइन की इक्वेशन क्या है? दैट इज R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 vector. Okay, so if I ask you what is the direction vector in the first line? B1 vector. What is the direction vector in the second line? B2 vector. So the angle between these two lines will be equal to cos inverse B1 vector dot B2 vector upon magnitude of B1 vector into magnitude of B2 vector. बेसिकली दो लाइन के बीच का एंगल उन दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर ही होता है। इसीलिए दोनों तरफ अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे लिए जो यूजफुल कंटेंट है वो कौन सा है? दैट इज ओनली डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन वेक्टर। तो उनका यूज करके हम इजिली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यू शुड राइट दिस।
ओके जब भी हम दो लाइन के बीच एंगल की बात करेंगे तो वहां पर हम दो स्पेशल सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे, और वो दो स्पेशल सिचुएशन है लाइंस का पैरेलल होना या लाइंस का परपेंडिकुलर होना। तो यहां पर हम कहेंगे लाइंस विल बी पैरेलल इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 और b1 वेक्टर इक्वल टू k b2 वेक्टर। मतलब मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म की भी कंडीशन बता दी और वेक्टर फॉर्म की भी कंडीशन बता दी। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन गिवन हो और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी आप लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन गिवन हो और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी आप लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। और अगर बात करें लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 या फिर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए आपको परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन भी यहां मिल जाती है। ओके ठीक है, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। पहले तो अपन एंगल फाइंड करना सीखते हैं। फॉर्मूला हमने जान ही लिया है। नाउ लेट फाइंड द एंगल यूजिंग दोज फॉर्मूलास। See here, you can easily observe that here we have given two lines in the which form? In which form we have given? Vector form. Which form? Vector form. And we need to find the angle between these two lines. So as I told you earlier, whenever we fetch the information from the equation of line, we should check that the given equation is in standard form or not. If it is not, then first convert it into the standard form, then you can collect the information from the line. So here check it, these two equations are in standard form or not? So I can easily observe that yes, these are in the standard form, so we can collect the directly information here. So here b1 vector will be equal to what? Ik plus 2jk plus 2kk. Okay, b1 vector is the direction vector of the first line. It is always written with the scalar quantity, so lambda is the scalar quantity there, so b1 vector is here. And b2 vector will be equal to what? 3ik plus 2jk plus 6kk. So to find the angle between these two lines, we need only these two factors. So I just write down it and I'm applying the formula, that is
cos inverse b1 vector dot b2 vector upon b1 into b2. What does b1 represent? b1 represent the magnitude of b1 vector and b2 represent the magnitude of b2 vector. So it is equal to cos inverse. If we do the dot product of these, 3 plus 4 plus 12 divided by the square root of squares of scalar components, that will be root 9, and root of 9 plus 4, that is 13, 13 plus 36, that is equal to 49. So it is equal to cos inverse 3 plus 4, that is 7, 7 plus 12, that is equal to 19, and divide by 3 into 7, which is equal to cos inverse 19 upon 21. Since we can't find angle for this value, that's why we will leave the answer here. A simple question based on angle between two lines. Done? Now we have a question based on Cartesian form. So let's see this. Again, we have to find the angle between these two lines, these lines in Cartesian form. So we just need the direction ratios of the line. Before getting the direction ratios, we should check that lines are given in the standard form or not. So we can clearly observe that these are given in the standard form for at least direction ratios. Okay. So that's why the direction ratios of first line, which is generally represented by A1, B1, C1 are 3, 5, 4. And the directions of second line, which are generally represented by A2, B2, C2, these are 1, 1, 2. So the formula of angle, that is theta equal to cos inverse A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Let's put the values. Cos inverse A1, A2, 3 into 1, that is 3, 5 into 1, that is 5, 4 into 2, that is equal to 8, divided by root of 9 plus 25, that is 34, 34 plus 16, that is equal to 50, and root of 1 plus 1 plus 4, that is equal to 6, equal to cos inverse 3 plus 5, that is 8, 8 plus 8, that is 16. Here I can write 5 root 2 into root 6, that is equal to cos inverse 16 upon root 2 into root 2, 2, 2 into 5, 10, 10 root 3. So we can solve it further also. We can write it as cos inverse 8 upon 5 root 3. And since again we can't find the angle for this value, so we will leave the answer here. A simple question.
If you know the formula, then we can easily find the answer. So yes, formula are important. Okay. Next question. Find value of k if following lines are perpendicular to each other. We have to find the value of k if following lines are perpendicular to each other. The equations are 2x minus 1 upon 3 equal to y minus 2 upon 5 is equals to z plus 1 upon 3 and x plus 1 upon minus 2k equal to 2y plus 3 upon minus 3 equal to 3z plus 7 upon minus 6. We have to find the value of k if lines are perpendicular to each other. Lines are given the Cartesian form, and we have to notice that what is the condition for the perpendicularity of two lines in the Cartesian form. That is what? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, where A1 B1 C1 are the direction ratios of the first line and A2 B2 C2 are the direction ratios of the second line. So we have to fetch these direction ratios from these lines. So for that, before we have to check that lines are given in the standard form or not. If these are not, then we have to convert them in the standard form. So tell me, are these in standard form? So I would say no, these are not the standard form, so we have to convert them in standard form. So first line in the standard form can be written as, I am writing that directly because we have discussed it earlier also, that's why. This is the standard form of the first line. Okay, tell me if you are disagree with any step. Okay, I'm writing the standard form of second equation. So correct. So here we should write the minus 3 by 2 and z minus 7 by 3. So if we compare these with direction ratios, A1 B1 C1 will be 3 by 2 comma 5 comma 3 and A2 B2 C2 equal to minus 2k minus 3 by 2 minus 2. Now we know lines are perpendicular, so A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 must be equal to 0. So put the values. 3 by 2 into minus 2k, 5 into minus 3 by 2, that is minus 15 by 2,
and 3 into minus 2, that is minus 6 equal to 0. Here we can reduce 2 with 2, so it is minus 3k equal to 15 by 2 plus 6. So minus 3k equal to 12 plus 15, that is equal to 27 upon 2. So k is equals to what? 27 upon minus 6, that is equal to minus 9 upon 2. So the value of k must be equal to minus 9 by 2. So this is a good example to understand that before fetching the information from the equation of line, we must check that line are in incident form or not. You can easily observe that if you will do the process without changing these in the standard form, you will get the wrong answer. Okay, let's change the situation for this question. Means let's consider that these lines are not perpendicular, these are parallel to each other, and then let's find the value of k. Okay, find value of k if lines in previous question are not perpendicular but they are parallel. So whether we have to find the value of k for the perpendicularity, for the parallelity, we must convert the equation firstly into the standard form, and we have done the process already, so we will apply the condition directly. So since this time lines are parallel, so what's the condition? That is okay, 1 minute. 1 minute. We will get stuck in these 4 values. So we have to write the new question. Okay, these lines are not parallel because you know what, parallelity के लिए क्या होना चाहिए? A1 upon A2 must be equal to B1 upon B2, but and C1 equal to C1 upon C2. So since B1 upon B2 will not be equal to what? C1 upon C2. That's why lines can't be parallel for any value of k. Okay, so we have to make a new question for this, but today time is get over, so we will do that question tomorrow. Okay, and you should write down the questions in homework. You have to complete the exercise 11.1, and in 11.2 you must solve question number 1, question number 2, question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Means you have to complete the questions till question number 11. Okay.